بہت تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کرنا ہے، اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ دعا فرمائیں کہ اللہ صحیح طرح سے سفر کو طے فرما دے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ سامنے ایک صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے فرمائش کی ہے کچھ شعر پڑھنے کے، اشعار ابھی بہت ہوں گے، بہت ہو چکے، ابھی بہت ہونا باقی ہے، اور باقاعدہ ابھی نعتیہ پروگرام بھی ہوگا، ابھی آپ حضرات سب سنیں گے۔ تو علامہ اقبال کا ایک شعر سنیے کہ محمد سے، سینکڑوں سال پرانا شعر، آج کا نہیں ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ اور والد صاحب نے تضمین لکھی تھی، وہ ذرا سماعت فرمانے، جو اصل ہے کہ مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، مرتبے سب سے۔ حضرت کو ذرا 10 منٹ کے لیے جگہ دیجیے، خالی 10 منٹ کے لیے آنکھیں کھولیے، اس کے بعد آپ کا شعر سماعت فرما لیں کہ مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، مرتبے سب سے نرالے بقسم تیرے ہیں، ناز تقدیر پہ، ناز تقدیر پہ ہم کو ہے کہ ہم تیرے ہیں، ناز تقدیر پہ۔ اللہ ہم تمام ایمان والوں کو اپنے نبی کا سچا غلام بنا دے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خان ہوئے تارک قرآن۔ ایک کمی ہماری آ گئی، بولو اس کمی کو دور کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سچی غلامی کی توفیق دے۔ دونوں بچوں کو ذرا، بیٹا ادھر چلے آؤ، یہ اپنا، اس کو لے کے بیٹیا ادھر چلے آؤ ذرا سا، کوئی بات ہوں گی۔ اور آپ حضرات تھوڑا سا آگے بڑھ لیں، یہ کرسی آپ ذرا کرسی آگے بڑھا لیں تھوڑا سا، جو کرسیاں کھالی ہیں وہ آگے بڑھیں۔ ایک قدم وہ ہم کر لیتے ہیں اپنے ہر چیز آپ کا چہرہ بھی کھڑ جاؤ گے، اس کا اپنا کام ہے۔ اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سامنے یہ سب لے کے نہ بیٹھیے گا، دائیں بائیں بیٹھیے، ہم کہاں تک روکیں، اکیلے جھیلیں اس بات کو، اب تو بہت ہو چکا ہے۔ کوئی صاحب کسی قسم کی کوئی بات نہ کریں، میں بہت بیمار آدمی ہوں اور بہت بھولتا ہوں، اور بھولنے والی عمر بھی ہو گئی ہے، 53 سال، 53ویں سال میں عمر داخل ہو گئے تو بھولنے کی عمر بھی ہو گئی ہے، تو لہٰذا کوئی بات چیت ادھر ادھر وہ سب نہ کیجیے گا، خاموشی کے ساتھ سن لیجیے تھوڑی دیر۔ میں نے بہت مختصر سی آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی آپ کہیے، جہاں جہاں قل آیا ہے اس کے معنی اے نبی آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے، بتا دیجئے، هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے خود ہی آگے جواب میں فرمایا لا یستوون، برابر۔ جاننے اور نہ جاننے سے کیا مراد ہے؟ علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بے علم نہ تما خدا را شناخت، بغیر علم کے اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا۔ وہ اتنے آپ سمجھے یا کوئی اور جگہ لے لیتے تھوڑی دیر کے لیے، اب تک تو بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، اب یہی تک بھیا
ये काला कुर्ता वाला भैया या तो निकलो या बैठ जाओ, चलो ना बार बार गले में फंदा लटकाए हुए दर्द पाक पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। भैया तवज्जो से थोड़ी देर सुनवाइएगा, बहुत थोड़ी देर, बहुत बयानात हो चुके हैं और अभी न जाने कितना कुछ बाकी है। तो जानने और न जानने से मुराद अल्लामा शेख सादी फरमाते हैं बेइल्म न तमा खुदारा शनाख्त, बगैर इल्म के अल्लाह को पहचाना नहीं जा सकता। और बड़ी खुशी की बात है कि आपकी बस्ती में शेरपुर जरौली या जरौली शेरपुर कैसा है ये हम नहीं जानते, नाम दोनों एक साथ है। यहाँ तो उलमा की तादाद बहुत है, हुफ़ाज़ और कुर्रा हजरात की तादाद बहुत, ये बहुत बड़ी नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अरे बोलो है कि नहीं? एक बात और दरमियान में अर्ज किए देता हूँ ज़िम्नन, लुहुमुल उलमाई मस्मूमुन, उलमा का गोश्त जहर आलूद होता है, मस्मूमुन जहर आलूद होता है। उलमा फरमाते हैं जो उलमा की ग़ीबत व बुराई करेगा कभी कभी ऐसा होता है कि मौत के वक्त कलमा ही नसीब नहीं। इतना याद कर लीजिएगा बस, और हम नहीं जानते आगे। उलमा की बुराई ग़ीबत करने वाला अंजाम ये होगा कि मौत के वक्त कलमा ही नसीब नहीं होगा। उलमा फरमाते हैं लुहुमुल उलमाई मस्मूमुन, उलमा का गोश्त जहर आलूद के माने आप उसकी मजम्मत और बुराई करोगे मौत के वक्त जबान पर कलमा ही नहीं आएगा। इतना आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा मैं नहीं करूँगा। एक तो ये बात हो गई, उलमा की जरूरत यहाँ भी पड़ा करती, मैदान क़यामत में पड़ेगी। जब जन्नत चले जाओगे तो भी उलमा की जरूरत पड़ेगी, यहीं तक बस नहीं है। भैया बात समझ रहे नहीं? यहीं तक मसला नहीं है, जरूरत आखिर तक पड़ेगी, बगैर इसके काम ही नहीं चलेगा। जब जन्नती जन्नत पहुंच जाएंगे अल्लाह की तरफ से तकाजा होगा ए मेरे बंदो कुछ मांग लो, तो जन्नती कहेंगे यहाँ हम क्या मांगे, सब परेशान हो जाएगा क्या मांगे। अल्लाह की तरफ से बार बार तकाजा होगा, कहा जाएगा ए मेरे बंदो कुछ मांग लो, जन्नती कहेंगे क्या मांगे, यहाँ तो सब कुछ है। और अल्लाह ने पहले से वादा कर रखा वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, जो कुछ जी में आए सब वहाँ पहले से मौजूद मिलेगा। अल्लाह ने वो जन्नत को तैयार करवाया, और यहाँ जो कुछ जी चाहे वो मिल, पैसा लाखों मौजूद हो, करोड़ों मौजूद हो, चाहे जितनी बैंक भरी हुई हो, हर चीज जरूरत की हर वक्त नहीं मिला करती। पैसा रखा है और न मानो तो एक साल पीछे लौट के देख लो जरा, जब वो एक जमाना आया था बीमारी वाला, जिसका नाम ही लोगों ने रखा था, वो अब हम नहीं कहेंगे, तब कहो आप, अभी झेले हो ना 2 साल, वही वाला। घर में पैसा मौजूद, लाख लाख 10-10 लाख रुपए मौजूद रहे, खाने की चीज नहीं मिल पाई, सोचा जरा मछली मिल जाए तो नहीं मिल पाई, सोचा बकरा मिल जाए तो ऐसे हवा खाओ, मिला कुछ भी नहीं से रहे। अरे बोलो मिला नहीं? अब इसको भी ना समझो तो आराम से बैठो, आप आगे हाथ है। अरे है कि नहीं भैया? पैसा होते हुए भी अरे मिल सका भैया, नहीं मिल सका। बहुत हजरत न बनो, पैदल लोग रहे, मिला कुछ नहीं, पैसा रखा रहा। तो याद रखो जन्नत में सब कुछ मिलेगा। अल्लाह ने इरशाद फरमाया वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दऊन, जो कुछ जी में आएगा वहाँ मौजूद मिलेगा। अल्लाह की तरफ से बार बार तकाजा हो जा, कहा जाएगा ए जन्नतियों मेरे बंदों कुछ मांग लो। बंदे कहेंगे हम अल्लाह से क्या चीज मांग ले, सारी चीजें तो अब जन्नत में भैया हर चीज है। अरे बोलो भाई, मेरे आका ने फरमाया एक ईंटा सोने का होगा, दूसरा चांदी का होगा, 11 मुश्क ज़ाफ़रान का होगा। कुरान मजीद के 30वें सिपारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला यस्मऊन फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, न वहाँ कोई दिल
को चुभने वाली बात सुनाई पड़ेगी, ना झूठी बात सुनाई पड़ेगी। बाप ने कमा कर पूरा घर ही भर दिया, सारी दौलत जमा कर दी, कोई चुपके से कहने वाला बाप ने ये नहीं किया। कोई कहता हम बाप की बात नहीं मानते, बीवी कहे कि हम अपने शौहर की बात नहीं मानती, कोई नाशुक्री कर जाया करती, किसी ने कोई कड़वी बात कह दी। दुनिया में तो इम्कान ही नहीं है पूरा सुकून मिल जाए। लेकिन अल्लाह ने वहां के बारे में इरशाद फरमाया, ला यस्माऊना फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, न कोई दिल को चुभने वाली तकलीफ देने वाली बात और न ही कोई झूठी बात वहां सुनाई पड़ेगी। जन्नत वैसी है, अल्लाह उसकी तैयारी की तौफीक अता फरमाए। अरे बोलो भैया, यहाँ के बारे में तो बच्चे नहीं बोलेंगे कोई भी, यहाँ के बारे में जुगाड़ तो बहुत किया है। अरे बोलो भैया, नहीं किया? महामग्धा आदमी भी गाफिल नहीं है, दौलतें जमा कर रहा है। महाघोंघा तलाश कर, घोंघा डालते हो ना, ज्यादा पानी भरता तो वैसे पानी के साथ बहता रहता घोंघा, और बिल्कुल खाली कुछ है ही नहीं, वैसा आदमी भी दुनिया में चालाक है, दौलत जमा करने में सोचता जल्द तो बड़ी कामयाबी मिल जाएगी। अरे अरे बोलो है कि नहीं? अरे बोलो है कि नहीं भैया? बड़ी कोशिश कर डाली, यहाँ की कोशिश इतनी ज्यादा कर डाली, कोशिश वहां के बारे में करनी चाहिए जहां रहना हमेशा हमेशा। अरे बोलो भाई, बार बार तकाजा होगा, कहा जाएगा कुछ मांग लो। भैया कुछ अगर बात करोगे तो हम पूरे भूल जाएंगे। अल्लाह के वास्ते जरा सा बस 10-15 मिनट। यहाँ हमारे बहुत खास हजरत मौलाना मुफ्ती अखलाक साहब मदनी को बहुत बार इन्होंने बुलाया और बातें होती नहीं हजरत मौलाना से, लेकिन अब क्या बताएं, ये बीमारी और मजबूरी समझो कि रोजाना झेल ही रहे हैं। और हर आदमी इसी में, जितने तकलीफ नाथ वाले सब ऐसे फंसे पड़े हैं, उसी में हम भी हैं, समझे नहीं? अल्लाह अमल की तौफीक दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, जो सिद्क दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिश दोज़ख हराम हो जाए। बस इतने, बाकी तो अभी जो होगा होगा उसको आप सुनिएगा। मस्जिद को बेदार करने के लिए अल्लाह की तरफ से कहा जाएगा, मेरे बंदो मांग लो। अब जन्नती परेशान होंगे, हम क्या मांगे अल्लाह से? बहुत परेशान होंगे, क्या मांगे? एक दूसरे से कहेंगे भाई क्या मांगे? अल्लाह की तरफ से कहा जा रहा है मांगो। अब मांगे तो क्या मांगे? और दुनिया में तो कहते हैं अल्लाह पाक सोने घर बना दो। वहां लबलब आदमी भी इसमें बड़ा होशियार रहेगा। कोई कहते भैया जितना मांगो मांग लो, कहा भैया 100 बीघा खेत हमारे नाम लिखवा। अरे है कि नहीं भैया? अब इसको भी ना समझो तो समझो आप इतने बड़े हजरत तो नहीं हो। दुनिया के बारे में आदमी बड़ा चालाक। अल्लाह की तरफ से बार बार तकाजा होगा, मांग लो जन्नत मेरे बंदो तुम मांग लो। अब लोग जाएंगे उलमा के पास, कहाँ भैया? कहाँ जाएंगे भैया? अब दुनिया में ना जाओ, खाली मोबाइल के चक्कर पड़े। सब लोग उससे बनवाते, क्या कहते हैं भैया? गूगल। अच्छा हाँ, उससे मंगवाते हैं। पूरी जिंदगी तबाह कर डाली, अपने आप में हला करके चले गए। वहां गूगल काम नहीं आएगा, मोबाइल काम नहीं आएगा, कोई भी चीज काम नहीं आएगी। जाना पड़ेगा उलमा के पास। लोग कहेंगे ए आलिमो जरा आप यहाँ बता दो, दुनिया में आप रहबरी करते थे, निकाह के वक्त आप मौजूद रहा करते थे, मर जाने के बाद नमाज जनाजा आप पढ़ाते थे, निकाह के वक्त आप ही रहा करते थे, इमामत आप करते थे। जब दुनिया में सब कुछ किया तो यहाँ भी जरा काम आ जाओ। पूछा जाएगा क्या चीज? तो वो कहेंगे अल्लाह की तरफ से हो रहा है, बार बार कहा जा रहा है, तकाजा है कि कुछ मेरे बंदो मांग लो। अल्लाह से हम क्या चीज मांगे? सब तो आप कुछ समझ ही में नहीं क्या मांगे। उलमा जवाब देंगे ए लोगों, अल्लाह से कहो परवरदिगार अपना दीदार अता फरमा दे। क्या अता फरमा दे? अल्लाह सारी जिंदगी तेरी इबादत में गुजार दी, तेरा दीदार भी तो होना चाहिए। ये जवाब कौन देगा भैया? हाँ समझ पाओ, समझो ना बैठो आराम से। कहते हमें आलिमों की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ेगी वहाँ भैया चक्कर में पड़ जाओगे अच्छी तरह। अल्लाह यहाँ, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं तो भैया बहुत सादा सुदा वैसे। उलमा क्या कहता है? उलमा जवाब देंगे अल्लाह से को परवरदिगार जरा अपना दीदार भी अता फरमा दे। अरे सब कुछ दिया, तेरी इबादत की सब कुछ किया, सब कुछ कर ला, जरा अपना दीदार भी अता फरमा दे। एक शेर मुझे याद आया जो हम अपने अल्लाह को भूले हुए हैं कि मेरी जिंदगी तेरी बंदगी
परवरदिगार मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, वो जो गफलतों में गुजर गई। अरे चचा, शामियाना बात में देखो, पहले हमको देखो, वरना लफड़ा इसी में है, हम आप भी देख रहे हैं। मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, मेरी जिंदगी तेरी बंदगी, तेरी बंदगी मेरी जिंदगी, वो जो गफलतों में गुजर गई। मेरी जान तन पे वो बाल है, वो जो गफलतों में गुजर गई। अरे बोलो, ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे जाया करती है जिंदगी। अरे बोलो, अल्लाह हमें सही तरह अमल की तौफीक दे। उलमा जवाब देंगे कि अल्लाह से वो परवरदिगार अपना दीदार अता फरमा दे, अब निजाम हो जाएगा। कैसा निजाम हो जाएगा? चंद मिनट की बात है। अब निजाम हो जाएगा। सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा, मैदान मस्जिद में सारा इंतजाम कर लिया जाएगा। हजरत तमाम के तमाम फरिश्ते जमा हो जाएंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बुलाए जाएंगे। जन्नत का दारोगा रिजवान से कहा जाएगा, ये जन्नत का दारोगा रिजवान तू भी यहाँ मौजूद हो जा। वो भी मौजूद हो जाएगा। तो सबसे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम बुलाए जाएंगे। इरशाद बारी होगा, ए दाऊद तू मुनाजात सुना दो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मुनाजात सुनाएंगे। जन्नती मस्त हो जाएंगे। मस्ती की कोई हद न होगी, इंतहा न होगी। अब पूछा जाएगा, ये मेरे बंदो जरा बताओ, तुमने कभी ऐसी आवाज सुनी या नहीं सुनी? जन्नती कहेंगे, परवरदिगार ऐसी आवाज तो हमने कभी भी नहीं सुनी। ऐसी आवाज थी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। और एक बात याद रहे, जन्नत में जाने वाले हर जन्नती की आवाज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ। घबराओ ना, चाहे कोई यहाँ बिल्कुल वैसे बोलता हो जैसे बरसाती मेढक, तब भी आवाज वहां। आजकल तराना बहुत उड़ाते हैं, मुछमुड़वा, वो सब मुड़वा होते हैं ना, तो तराना बहुत उड़ाते हैं। शादी ब्याह की जब महफिल में जाया करते ऐसे तराना फेंके पड़े, और दो कौड़ी का, भैया माफ कीजिएगा, दो कौड़ी का आवाज। अल्लामा शेख सादी ने एक वाकया लिखा कि एक आदमी की आवाज बहुत बज्जी थी, बहुत बेकार। वो आदमी चला गया जंगल में, गड्ढा में बैठकर, अल्लामा शेख सादी ने लिखा इसको, वो गड्ढा में जाके कुछ गाने लगाया। एक औरत बेचारी चलते चलते वहां पहुंच गई, तो उसको जब आहट मिली ना उस गाने वाले को, तो बहुत खुश होगा, कहा अरे तुमको इतनी मेरी अच्छी आवाज लग गई, कहा सुनो हमारा गदहा को मैं इसे वो भी चिल्लाता। अरे तौबा, जंगल में गड्ढे में जाने के बाद भी। तो नौजवानों को सारे गाने उसी रास्ते पे याद आते हैं जिस रास्ते से औरतें गुजरती। अफसोस ऐसे नौजवानों पर। अल्लाह शर्म दी, शर्म की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हया की तौफीक अता फरमाए। सबकी दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह आवाज हो जाएगी, हुक्म हो जाएगा, ए दाऊद तुम खामोश हो जाओ। उसके बाद इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नूर का मिंबर होगा। आप नूर के मिंबर पर तशरीफ फरमा होंगे, जलवा अफरोज हो जाएंगे। कहा जाएगा, ए मेरे महबूब आप सूरह रहमान सुना दो। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सूरह रहमान सुनाएंगे, जन्नती मस्त हो जाएंगे। मस्ती की कोई हद न होगी, इंतहा न होगी। यहाँ तक कि आपकी आवाज से जन्नत की हवा से टकराव हो जाएगा। वो हवा जाके जन्नत में दाखिल हो जाएगी, जन्नत के पेड़ों से टकरा जाएगी। और जन्नत की डालें, जो जन्नत का पेड़ सोने और चांदी का, जिसकी डालें लचकी हुई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह तहर के अंदर, वज़ुल्लिलत कुतूफुहा तज़लीला, जिसकी टहनियां, जिसकी डालें लचकी हुई होगी, वो डालें उस हवा के टकराव से आपस में रगड़ खा जाएंगे, आपस में टकरा जाएंगे। उन डालों की टकराव से ऐसी आवाज पैदा होगी जैसी आवाज दुनिया वालों ने कभी भी नहीं सुनी। अल्लाह
اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آواز سننے کے بعد مست ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب کی آواز اللہ اکبر. اللہ ہم ایمان والوں کو بھی میٹھا بولنے کی توفیق عطا. اب تک جو پورے پر لگ رہا ہے کریلے کھائے آدمی گھوم رہا ہے. ارے بولو ہے جس کو دیکھو کٹہا ہو چکا ہے, بات کرتا لگا. ارے ہے کہ اور سب سے زیادہ کڑوا بول تو بیوی بولتا ہے جا کے, جہاں بالکل منع ہے. باہر سے گھر آ گیا, ایک ساتھ پہنے لگے, جب میں گھر میں جاتا ہوں تو بیوی ہم سے ڈر جاتی ہے. میں نے کہا پورے لب لب ہو. اب بیوی کو ڈرانا, بیوی جب گھر میں جاؤ بیوی سے ملاقات ہو تو تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار و آقا فرماتے ہیں ایسے آدمی کو صدقے کا ثواب ملے گا. صدقے کا ثواب ملے گا جو بیوی کو دیکھ کر تو وہاں تو لگ رہا ہے کہ سانپ سونگھے پڑا ہے. کہاں گھر میں جب آئے بیوی کو دیکھا لگ رہا ہے سانپ سونگھے پڑا ہے, اور جب ادھر ادھر جائیں گے محفل میں تو لگ رہا ہے شکر اور شہد کھائے گھوم رہے. توبہ ہے. ارے بولو بہت مٹھو نہ بنے. اکثر لوگوں کا حال پورا اخلاق کا ایجنٹ یہ وہی بولتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آواز اللہ صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو دیکھ کر مسکرائے, خوشی ظاہر کرے, ایسے آدمی کو صدقے کا ثواب ملتا ہے. ایک ایمان والے کو چاہیے دوسرے کو دیکھ کر خوشی ظاہر کرے, بورا نہ بنائے, بالکل کڑوا نہ بنائے. اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آواز کا کیا پوچھنا. مجھے شعر یاد آیا کہ سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. انصاف سے کہہ دو آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. انصاف سے کہہ دو آقا کی کہ گفتگو معجزہ تذکرہ معجزہ کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ. کیسی میٹھی آواز, کیسا بہتر انداز تھا سرور کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب علیہ السلام سورہ رحمان سنائیں گے, جنتی مست ہو جائیں گے. ارشاد باری ہوگا اے میرے محبوب آپ خاموش ہو جاؤ. اب پوچھا جائے گا اے جنتیوں ذرا تم بتا دو ایسی تم نے کبھی آواز سنی. جنتی کہیں گے پروردگار تصور میں بھی نہیں تھا. ایسی آواز کس کی بھیا؟ اللہ کے محبوب مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آگے سنیے گا ذرا. اللہ حکم فرمائے گا میرے محبوب آپ خاموش ہو جاؤ. جنت کا داروغہ رضوان کو حکم ہو جائے گا اے جنت کا داروغہ رضوان تجلیات کے پردوں کو اٹھا دے. ابھی تک تو ایسا ہی سنا جا رہا تھا, اب باری کس کی آئے گی بھیا؟ اللہ بس یقین نصیب فرما دے کہ امت کو روز محشر انعام جو ملے گا. امت کو روز محشر امت کو روز محشر انعام جو ملے گا. معراج میں وہ سب کچھ معراج میں وہ سب کچھ سرکار دیکھ آئے. معراج میں وہ سب کچھ. اب اللہ خود ہی قرآن سنائے گا, آواز آئے گی اے میرے محبوب کا خاموش ہو جاؤ. حکم ہو جائے گا اے جنت کا داروغہ رضوان تجلیات کے پردوں کو گرا اٹھا دے. تجلیات کے پردوں کو حکیم الاسلام حضرت مولانا قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. ان کی تقریر کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا. انہوں نے لکھا حکم ہو جائے گا اے جنت کا داروغہ رضوان تجلیات کے پردوں کو اٹھا دے. کتنے پردے اللہ کی بھیا چچا 250 روپیہ لے لو, خالی ادھر دیکھو ورنہ تقریر بھول رہے ہیں. اللہ نمازوں میں لوگ بعض لوگ جاتے ہیں تو
कोई नहीं करते तो बाहर पूरी नमाजें चौपट कर लेते हैं। और एक हमारे यहाँ पूरा पौड़ा में पूरा मग्घा, वो यूं खिसक कुर्सी बैठता है, वो खिसक के पीछे वाले देखता। तो मैंने कहा ये भी कोई नमाज हो? तो कहा हम ऐसे पढ़ते हैं। तो मैंने कहा पढ़ो जाओ हवा खाओ, ऐसे कोई नमाज होती है? अल्लाह को समझ लेता। अरे बोलो भैया बचा लो नजरें। अब तक तो नजरें क्या पूरा बिल्कुल समझो बैगिंग है, नजरें नहीं बचा पाए अब तक। अरे बोलो बचा पाए? अरे नजरें बच पाई भैया बहुत कम। और बहुत हजरत न बनो, ऐसा है हजरत तो हर आदमी बना घूमता है सफेद कपड़ों में, जब पता लगाओ तो पता चला बैरंगे लगाए। हजरत तो जिसको देखो वही आपको मिलेगा। अरे बोलो समझ रहे भैया ना? एक मुझे आयत याद आई, अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन्नस-समअ वल-बसर वल-फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। बेशक ये कान और आंखें और दिल, इन तीनों चीजों के बारे में अल्लाह क्या पूछा जाएगा। और सबसे ज्यादा नजरें खता करते कौन भैया? जिसको देखो वही तौबा है अल्लाह। ऐसा ही मारा जा रहा, मतलब कुछ हाथ वाथ ऐसा है। बिला वजह 12 बजे रात तक जागा पड़ा, बिला वजह 2-2 बजे रात तक मोबाइल में फंसा पड़ा है, कंबल डाले हैं, चादर डाले हैं, और बिल्कुल जैसे पागल नहीं होता, पागल ही समझो। और अगर इसी हाल में फरिश्ता आ गया लेके गया तो सीधे जिनाकार साबित हुए। अरे बोलो हुए नहीं हुए? गैर महरिम की तस्वीरों को देखने पर भी आंख की जिना का गुनाह पड़ता है, पूरी रातें चौपट कर डाले। उसके बाद अल्लाह का दीदार भी दीदार में 4 डंडे मिलेंगे। ऐसे थोड़े हो जाएगा। अल्लाह आंखों को पाक करने की तौफीक अता फरमाए। बगैर पाक किए अल्लाह पाक है, पाक जात का दीदार पाक आंखें ही कर सकती, नापाक आंखें नहीं कर सकती। हुक्म हो जाएगा ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। बहुत मुख्तसर करके अल्लाह की तजल्लियात के हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल्लाह की तजल्लियात के 70,000 पर्दे। कितने भैया? न 7 न 700 नहीं, 70,000 पर्दे अल्लाह की तजल्लियात। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे तशरीफ लाए, कहा परवरदिगार अपना दीदार करा दीजिए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लन तरानी, ये मूसा हरगिज नहीं देख पाओगे। और जब तजल्ली की थोड़ी सी झलक पड़ी, वही तूर तो जल गया, 4 टुकड़ों में हो गया। वक़र्रा मूसा सईक़ा, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। मुफस्सिरीन फरमाते कई रोज तक होश ही नहीं आया अल्लाह के पैगंबर कलीमुल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। और वहां तो तजल्लियात के 70,000 पर्दे मौजूद हैं। हुक्म हो जाएगा ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। सारे पर्दे उठा दे, बाकी न रह पाए, सिर्फ एक पर्दा अल्लाह की बड़ाई का बाकी रहेगा। अरे बोलू ना बोलू इस बात का जरा सा 2-2.5 मिनट से इस बात पर। हर आदमी जिसको देखो बड़े बना घूम रहा है, कोई छोटा आपको नहीं दिखेगा। हर आदमी क्या बनता भैया? कपड़ों बड़ा बनता है, ऐसे फूले जाने। कोई कहे भैया भाई साहब तो कहने में बहुत बड़ा आदमी, अब है पूरे कुप्पा बड़ा कौन है भैया? बड़ा तो अल्लाह है, अल्लाह के बाद अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको देखो बड़े बना घूमा नहीं। बड़ा कोई नहीं, कभी ये ख्वाब में आदमी न रहे। बड़ा तो बड़ा होता मैं कहा करता हूँ, कभी कभी स्टेशनों पे बिकता है, आदमी के कद के बराबर लगेगा, बहुत बड़ा है। और जरा कहीं कुछ लग जाए, कांटा वाटा कहीं तिनका चुभ जाए, वो बड़ा लापता है। अरे बोलो है कि नहीं? पता ऐसा है, कुछ छिछड़े मिले, गुब्बारा को पता ही नहीं चला। बड़ा कोई नहीं, बड़ा अल्लाह है। अल किब्रियाउ रिदाई, पढ़ाई अल्लाह की चादर है। हुक्म हो जाएगा ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। एक पर्दा नहीं उठाना, वो बाकी रहेगा, वो होगा अल्लाह की बड़ाई का पर्दा। काय का पर्दा? अल्लाह की बड़ाई का पर्दा। कोई बड़ा न बने भैया। मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाहु लहू, जो तवाज़ु अख्तियार करेगा उसको अल्लाह उठाएगा, बुलंद करेगा। और जो बड़ा बनेगा तो खजूर लगती है बड़ी, ना साया नवाया कुछ ना ऐसा है, और तेज हवा चल जाए तो नीचे मिलेगी।
बड़ा अल्लाह अल्लाह तवाज़ु इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। एक पर्दा अल्लाह की बड़ाई का बाकी रहेगा, सारे पर्दे उठ जाएंगे। अब अल्लाह खुद ही अपना कलाम सुनाएगा। जब साहिब कलाम सुनाता है अपने कलाम को, तब मजा कुछ और होता है। अरे बोलो है कि अब अल्लाह कलाम सुनाएगा, जन्नती मस्त हो जाएंगे, बड़ा अरसा गुजर जाएगा, बड़ी मुद्दत गुजर जाएगी। जिस रब ने सारी दुनिया को आवाजें बांटी तकसीम कर दी, अल्लाह के खजाने में जर्रा बराबर कमी नहीं आई। और ये भी अल्लाह का एहसान है जो अल्लाह ने आवाजें मुख्तलिफ की हैं, अलग अलग जुदा जुदा, वरना दुश्मन और दोस्त, रिश्तेदार और बहू और बेटी और बीवी बहनों में कोई फर्क नहीं हो पाता, जिंदगी अजीरन हो जाती, मुश्किल हो जाती। ये भी हमारे रब का फजल और एहसान है जिसने आवाजें मुख्तलिफ की हैं, जुदा जुदा अलग अलग, ताकि पहचान हो सके। जब अल्लाह ने इतनी आवाजें तकसीम की हैं, दूसरे से नहीं मेल खाती, उस अल्लाह के पास कितनी आवाजें होंगी, उसकी आवाज कैसी होगी, इसका अंदाजा लगाओ। शमए रिसालत के परवानों, अब अल्लाह खुद ही कुरान सुनाएगा, अपना कलाम सुनाएगा, जन्नती मस्त हो जाएंगे, मस्ती की कोई हद न होगी, इंतहा न होगी, बड़ा अरसा गुजर जाएगा। उधर जन्नत की हूरें रोएंगी, परवरदिगार हमारे शौहर दरमियान से चले गए थे, बड़ा अरसा गुजर गया, अब तक वो वापस नहीं आए। उनके रोने की बुनियाद पर हुक्म हो जाएगा, ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को गिरा दे। वो पर्दे गिरना शुरू हो जाएंगे, धीरे धीरे दीदार का सिलसिला बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जन्नती चीखेंगे, परवरदिगार बहुत थोड़ी देर का दीदार हुआ, तृष्णगी बाकी रही, प्यास बाकी रह गई, चाहत बाकी रह गई। आवाज आएगी, मेरे बंदो बताओ जरा कितनी मुद्दत का दीदार किया। जन्नती अंदाजा करके बताएंगे, परवरदिगार 1-1.5 दिन या आधे दिन का दीदार हुआ होगा। आवाज आएगी, मेरे बंदो नहीं, बल्कि तुमको 8 लाख साल हो गए दीदार ही करते रहे। अल्लाह ने शान फरमाया, वुजूहु यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। जब उस दिन लोग अल्लाह का दीदार करेंगे, दीदार करते ही रह जाएंगे। 8 लाख साल गुजरने के बाद ऐसा महसूस होगा 1-1.5 दिन या आधे दिन का ही दीदार हुआ होगा। इतना हसीन और जमील हमारा अल्लाह है। शेर याद आया कि हैं जहां में कितने हसी तो हैं जहां में कितने हसी तो हैं, मगर आज है तो वो कल नहीं। है जहां में कितने हसी तो हैं, मगर आज है तो वो कल नहीं। परवरदिगार तू वो हुस्न है कि जिसे कभी, तू वो हुस्न है कि जिसे कभी न उफूल है न सवाल है। तू वो हुस्न है कि जिसे कभी, तो जरूरत वहां भी, अरे बोलो पीछे तक बोल दो ऐसे। यहाँ भी उलमा की जरूरत है, वहां भी उलमा की जरूरत पड़ेगी, बगैर इसके काम ही नहीं चला। गूगल सब इधर ही उधर, जैसे मरो वैसे सब किनारे लगा, खाली वही कफन मिले कि ऐसे ही जाओ। गूगल सब तौबा है। अल्लाह सही अमल की तौफीक अता फरमाए, उलमा से सही ताल्लुक जोड़ने की। नमाज का, हर चीज का और रोजे का, तमाम जितने भी मसाइल हैं उनको उलमा से सीखो, वरना तबाही आ जाएगी, ऐसे गुमराह हो जाएगा कि आखिरत की मंजिल को सही तय नहीं कर सकता है। ये चंद बातों में एक ही बात ही मैंने गोशगुजार की, इससे ज्यादा का मौका नहीं रहा। अब एक बहुत मुख्तसर सी नात, वो भी सलाम के ताल्लुक से है, उसके 2 शेर समाप्त फरमा लीजिए। 1 बजने जा रहा है, मेरा वक्त तो तैयारी का है, मुझे समझ हजरत आ गए। हजरत तो वो है जिनको वालिद साहब चाहते थे। हजरत का जहां कई जगह हजरत ने मुझे हुक्म किया, तो बगैर किसी चूचरा के मैंने फौरन लब्बैक कहा। हजरत वो
بس اللہ ہم تمام لوگوں کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر میں میں سامنے کی تعریف کا عادی نہیں ہوں لیکن مجبوراً کہنا پڑتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ اور پیدا۔ اور اگر دوسرا شعر سنو تو ان کا شعر سنو آپ، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا، جنہوں نے مثنوی شریف میں لکھا، بڑے بڑے علماء پڑھتے ہیں مثنوی شریف، نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ ہر چیز ختم ہو جائے تو نفس ویسے بولا پڑا کہ ہم بھی کچھ ہیں تو سمجھو ادھار ہے۔ نہنگو اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ بہت ہی پھولتا۔ تو اب پوربی کی فرمائش ہے، دو چار شعر اس کے بھی کسی طرح درود پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جھوٹی سنت کی ڈگریاں کیسے بن پڑی، بچپن بیتا نادانی ماں گئی جوانی ساری، گئی جوانی ساری، پاؤں تھکے جب آوا بڑھاپا مرنے کی تیاری، موڑے پاپن کی گٹھریاں کیسے بن پڑی، اونچے اونچے گھر بنوائن گدے پلنگ رجائی، گدے پلنگ رجائی، سمے ایک دن ایسا آئی ہے جری نہ ایک چٹائی، ملی ہے ماٹی کی کوٹھریاں کیسے بن پڑی، دین دھرم سب تاکے دھر کے جگماں کین کمائی، جگماں کین کمائی، موت کی بیریاں جہ دن آئی ہے پلما سب چھن جائی، ملی ہے کفنی اور چدریاں کیسے بن پڑی، چھوٹی سنت کی ڈگریاں کیسے بن پڑی۔ حافظ حتیب بیچارے جو ہمیشہ ساتھ دینے کو تیار رہتے، کہیں بھی سفر ان کی فرمائش تھی، دو تین شعر وہی سلام کے تعلق سے۔ دو تین شعر یہ حضرت تو حکم فرمائے لیکن اس طرف ذہن جانے گا تو وہ ہماری مجبوری ہے۔ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی رہنما پہ